Good morning, students. In the last class, we have covered topic uh, formal and informal organization. Today, we discuss that is delegation. Delegation means dispersal or distribution of authority in between the two. So, what is delegation? Delegation refers to the downward transfer of authority from superior to subordinate. Delegation also explains the relationship between the two. One is superior and second one is subordinate. It is a prerequisite to the efficient functioning of an organization because it enables the manager to use his time on high priority activity. देखिए, आपका डेलीगेशन सबसे ज़्यादा ये रहता है कि हम डेलीगेशन करते क्यों हैं. तो अथॉरिटी आपकी अगर किसी फ्यू हैंड्स में रहेगी या आपके सेंट्रलाइज वे में अथॉरिटी अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसे हम एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव नहीं कर सकते. कोई भी स्टेप आप फॉलो ऑन कर रहे हैं तो आपको पहले अपनी हायर अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा. तो इससे अच्छा है कि हम जो है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसके इक्वल हम जो है अथॉरिटी भी प्रोवाइड कराएं अपने सबऑर्डिनेट्स को, जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के अंदर में पढ़ा था इन सेकंड चैप्टर. सो नेक्स्ट वन इज इट ऑल्सो सेटिस्फाई द सबऑर्डिनेट नीड्स फॉर recognition and provide them with the opportunities to develop and exercise initiative. First, downward transfer of authority between the superior to subordinate. First, delegation का means. Second, it provide very easy or efficient functioning of organization because the manager able to take और गिव प्रायोरिटी टू हिज मेन एक्टिविटीज़. ठीक है, तो मैनेजर जो है अगर सिर्फ डेली एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व रहेगा तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर प्रायोरिटीज़ वाले जो है एक्टिविटीज़ को ध्यान नहीं दे पाएगा. तो इस वजह से डेलीगेशन करना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, इट ऑल्सो सेटिस्फाई द सबऑर्डिनेट नीड फॉर रिकग्नाइजेशन. मतलब आपके सबऑर्डिनेट की जो एक नीड है उसको फुलफिल करने के लिए भी अथॉरिटी का डेलीगेशन होना बहुत ज़रूरी है. इससे क्या है कि आपके जो है सबऑर्डिनेट का डेवलपमेंट होगा. ठीक है, वो इनिशिएटिव्स ले सकता है, बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव ऑन कर सकता है. अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो क्रिएटिविटी भी अपनी इन्वॉल्व नहीं कर सकता. तो डेलीगेशन जो है इस तरह के जो है आपको नीड्स प्रोवाइड कराता है. There is a three element of delegation. First is authority, responsibility and accountability. Authority means right to take decision or power to take decision. This is called the authority. Responsibility, that is the obligation to accomplish work. Accountability, it is the answerability to superior from subordinate for his result. Okay. So let us discuss one by one. Authority, right to give order and take action within the scope of his position, and it can be delegated. Authority delegated and flow of authority is always downward. Okay. Responsibility, obligation to accomplish the work assigned by superior, it also can be delegated. Its flow upward always, because the always subordinate responsible to his superior. That is why the responsibilities flow always upward. Okay, authority always flows downward, and accountability cannot be delegated or their flow is upward also. ठीक है. Then it is answerability for the result. मीन्स अकाउंटेबिलिटी, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, टास्क दिया गया है, अथॉरिटी दी गई है टास्क के अकॉर्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो आपको रिजल्ट जो है बताने के लिए आप ही आंसरेबल होगे जो आपको टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इट हेल्प in effective management, employees development, motivation of employees,
basis of management hierarchy and the growth of organization, better coordination. Discuss one by one. Help in effective management. इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे बनाने में हेल्प करता है आपका डेलीगेशन? जब हम जो है अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करेंगे बिटवीन द टू, तो क्या होगा कि जो आपका मैनेजर है वो अपने क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट और हाई प्रायोरिटीज़ जो भी डिसीजन है उन्हें लेने में पूरी तरीके से कैपेबल होगा, और क्लियर कट रोल जो है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट होती है जब हम जो है डेलीगेशन करते हैं अथॉरिटी का, कि जिस पर्सन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की है या डिस्ट्रीब्यूट की है उसी ने अथॉरिटी और उसी को रिपोर्ट करना है. दैट इज मीन द डेलीगेशन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. एम्प्लॉय का डेवलपमेंट अभी हमने डिस्कस किया है कि एम्प्लॉयज़ को इनिशिएशन लेने में हेल्प करता है डेलीगेशन. उसके पास अथॉरिटी है, वो क्रिएटिव वर्क और क्रिएटिविटी ऐड कर सकता है, इनिशिएशन ले सकता है, बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव ऑन कर सकता है. लेकिन अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है किसी चीज़ की, या अपने काम तक की भी अथॉरिटी नहीं है, उसे बार बार अपने सुपीरियर का परमिशन लेना पड़ेगा, तो इस वजह से क्या होता है कि डेवलपमेंट नहीं हो सकता. लेकिन अगर हम डेलीगेशन को फॉलो ऑन करेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो सकता है. मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑब्वियस सी बात है कि आपका डेलीगेशन मोटिवेट करता है, मतलब कि काम में और एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि उनकी नीड जो है आपके एम्प्लॉयज़ की डेलीगेशन के थ्रू उनकी जो भी पहचान है वो सबको पता लगती है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाने जाते हैं, तो मोटिवेशन लेवल बढ़ता है. यहाँ पे आपके बहुत सारे लेवल हैं मोटिवेशन के, तो उनके हिसाब से जो है डेलीगेशन अगर हेल्प करता है तो मोटिवेशन भी एम्प्लॉयज़ का इंक्रीज होता है. हायरार्की मेंटेन करने में अभी मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन करता है आपका डेलीगेशन. ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप जो है डिविजनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, मोर देन वन लाइन प्रोडक्ट और ब्रांचेस खोल सकते हैं, क्योंकि आपने जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी डेलीगेट कर रखी है. कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने में भी आपका हेल्प करता है. कैसे? अगर किसी को काम दिया गया, टास्क दिया गया है, अगर उसको ये भी अथॉरिटी नहीं दी गई है कि आप इसमें किसी की हेल्प ले सकते हैं, तो वो काम एफिशिएंटली इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं होगा. तो बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है. अगर किसी को अथॉरिटी दी गई है तो वो अपने साथ कई लोगों को उस काम में लगा सकता है, लेकिन अगर अथॉरिटी नहीं है तो फिर काम नहीं करवा सकता. सेकेंड कंसेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन. इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक सेंट्रलाइजेशन, एक डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर इन अ फ्यू हैंड. जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिग बाजार और उस टाइप के रहते हैं तो वहाँ पे सेंट्रलाइज परचेजिंग होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइज सेलिंग होती है. मीन्स क्या है कि कोई भी डिसीजन लिए जाएंगे, आपके जो है कैसे डेकोरेट किया जाएगा, क्या काम करवाना है, क्या चीज़ें हैं, क्या प्लान्स एंड पॉलिसी हैं, तो वो सेंट्रलाइज जो है आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ही उसे डिसाइड करेगा. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, तो उनमें क्या है कि सेंट्रलाइज लेवल ज़रूरी होता है. और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स है अगर आपको उन प्लान्स को, उन वर्क को इम्प्लीमेंट कराना है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन refers to delegation of authority throughout all the levels of the organization. There is the 3 level of the organization, means first level, means top level, middle level or lower level. So 3 in all level of the organization, when the authority is dispersed, it's called decentralization. Decision making authority is a push down the chain of command. ठीक है, तो आपकी जो चेन ऑफ कमांड है उस पर पुश डाउन कर दी जाती है आपकी अथॉरिटी. ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीन्स है व्हेन द अथॉरिटी मल्टीप्लाइज इन ईच एंड एवरी लेवल, इट कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. बिटवीन 2 then delegation, and in each and every level when the authority disperse, it's called decentralization. What is the importance? Develop initiative among the subordinate, obviously है,
मीन्स आपके मिडिल लेवल, आपके लोअर लेवल, हर लेवल पर जो है आपके अथॉरिटी लेने का राइट है। तो इनिशिएशन लेने में सबऑर्डिनेट के अंदर एक मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, इनिशिएशन लेते हैं, वो हर वर्क को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर टैलेंट, ठीक है, अपने मैनेजर टैलेंट को जो है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा फ्री रहते हैं आपके एम्प्लॉयज़। क्विक डिसीजन मेकिंग, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, डिले नहीं करना पड़ेगा। स्केलर चेन के थ्रू जो है आपने जो है आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतनी आपको अथॉरिटी दे दी गई है कि आप अपने लेवल तक डिसीजन ले सकें। रिड्यूस बर्डन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये तो डेलीगेशन में भी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि हमने ईच एंड एवरी लेवल पर उसे डिवाइड कर रखा है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड बेटर कंट्रोल, ठीक है, ग्रोथ और कंट्रोल के लिए जो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन हेल्पफुल है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।